Very warm welcome to all the students of class 10th. My name is Ujjwal and I will be taking your maths and we will be continuing the same exercise we were doing last time, our polynomial chapter number 2, and the exercise is 2b. We have already done up to question number 9. So I am going to give you the solutions for two questions today. Question number 10 and 11, the most important questions in this exercise. Actually rest of the question are based upon these two. So coming on to question number 10, see here we are given with a polynomial px is equal to 3x cube plus x square, 3x cube plus x square plus 2x plus 5 plus 2x plus 5 is divided by some gx. ये gx हमारे पास नहीं है कि इस पॉलिनोमियल को किस डिवाइजर से डिवाइड किया जा रहा है, बट द कोशिएंट इज गिवन. कोशिएंट इज गिवन टू अस, इट इज 3x minus 5, यानी इतनी बार डिवीजन हुआ है. And the remainder is also given, whatever the left after the division is 9x plus 10. It is 9x plus 10. Then we are supposed to find out the gx. See, we know that we have already gone through this thing, that dividend equals to divisor into quotient plus remainder. We have already done this thing in our last classes. We are very well aware of this thing. Here the dividend is our px equals to gx. The divisor is unknown. Multiply the quotient. हमें पता है कि कितनी बार डिवीजन हुआ है, that is 3x minus 5 plus रिमाइंडर जो आया है वो 9x plus 10. हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम इसको अकेला छोड़ने की कोशिश करते हैं. 9x plus 10 यहाँ पे प्लस में है, इसको इधर ले आइए. सबसे पहले तो अपने px की वैल्यू पुट अप किया 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. एवरीथिंग इज इन पॉजिटिव फॉर्म. Yes, everything is in positive form. This is our px. और जब इस प्लस के रिमाइंडर को हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा. 9x plus 10 equals to the gx is unknown, तो ये हमारे पास as it is रखा हुआ है. मल्टीप्लाई दिस qx यानी quotient 3x minus 5. Now see, I am going to open this bracket. 3x cube plus x square plus 2x plus 5 plus into minus minus 9x plus into minus minus 10 equals to, this is our gx, multiply 3x minus 5. See, 3x cube की कोई दूसरी टर्म नहीं है, it is written over here 3x cube plus x square and no other term, x square, 2x and 9x. 2x is in positive form and 9x is negative, so we are left with 7x. This is plus 5 and minus 10, so minus 5 is left. यहाँ पे ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है. हमें gx की वैल्यू निकालनी है, तो हमने gx को अकेला छोड़ दिया. ये 3x minus 5 ट्रांसपोज होगा दूसरी साइड पर, इधर मल्टीप्लाई है, तो हियर इट विल बी इन डिवीजन 3x minus 5. So students, if we solve this thing by long division method, we will get our gx. अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में आ जाते हैं, जो कि हमें हमारा gx का वैल्यू बता सकता है. 3x minus 5 से डिवाइड हो रहा है, 3x minus 5 से डिवाइड हो रहा है. कौन डिवाइड हो रहा है भाई? 3x cube plus x square, 3x cube
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 माइनस 7x minus 5. Now see, we are given with 3 and we have to make it 3. तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। x को x क्यूब बनाना है तो कम से कम x स्क्वायर टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो x स्क्वायर इंटू 3x, तो 3x क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 5, तो माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन के लिए जाएंगे, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 3x क्यूब माइनस का 3x क्यूब कैंसिल, बचा क्या प्लस x स्क्वायर एंड प्लस 5x स्क्वायर, प्लस में 6x स्क्वायर, उसके अलावा माइनस में 7x है, माइनस में 5 है। नाउ 3x है और हमें उसको 6x स्क्वायर बनाना है, तो 3 को 6 बनाने के लिए कम से कम प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x को x स्क्वायर बनाने के लिए कम से कम एक बार x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ 2x into 3x will give us 6x square plus 2x and minus 5 multiplied together to give us minus 10x. Again go for the subtraction. This will become negative because it is in positive form and minus 10x will become plus 10x. Plus minus 6x square cancelled. What we are left with minus 7x and plus 10x plus 3x and minus 5. Just see 3x minus 5 and 3x minus 5. One time division. Plus 1 3s are 3x plus into minus minus 1 5s are 5. Subtraction negative and positive. Cancel. Remainder is 0. Therefore our gx, आपको बताया था कि इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा gx हमें मिल करके आ जाएगा। तो gx we have got is x square plus 2x plus 1. This is the thing we were looking for. हम इन्हीं को ढूंढ रहे थे कि एक्चुअली में इस पॉलिनोमियल को किस चीज से डिवाइड किया गया जो इतना कोशिएंट आया और इतना रिमाइंडर बच गया। तो सॉल्यूशन करने पे मालूम चला कि the value of gx is x square plus 2x plus 1. Now let us move to the next question, question number 11. See, all the students, you all are advised to do these questions in your classwork copy. Whatever on board questions, homework questions as well as the PDFs we are giving, you have to do all this in your school copies. Now come on to question number 11. Question number 11 is saying that verify division algorithm. थोड़ा सा long question है. We have to verify the division algorithm for the polynomials fx. There is one polynomial given to us. उसका नाम fx है. 8 plus 20x, 8 plus 20x plus x square minus 6x cube, and this polynomial is divided by one gx is given to us. Gx is 2 plus 5x minus 3x cube. Now see what we are supposed to do in this one. हमसे बोला गया है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले इस gx से इस पॉलिनोमियल में डिवीजन करेंगे। हम डिवीजन करने पर कुछ कोशिएंट हमें मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। उसको हमने fx इक्वल्स टू gx इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर में रख करके वेरीफाई कर देना है कि LHS और RHS बराबर है, और ये तभी होगा जब हम यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर करेंगे। हमें मतलब बहुत थोड़ी सी मतलब सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ज़रा भी हमारी वैल्यूज़ चेंज हुई तो हमारा वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा।
So please be conscious while doing this type of question. First of all, I am going for the long division. gx से divide कर रहा हूँ fx में. तो gx is 2 plus 5x minus 3x cube. इससे divide किया 8 plus 20x plus x square minus 6x cube. प्लीज बी अटेंटिव. यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल वे में नहीं रखी हुई हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन में हमें करना क्या होता है, सबसे बड़ी टर्म और सबसे बड़ी टर्म को इक्वल करके कैंसिलेशन करने को जाएंगे हम. सी देयर इज वन थिंग, द gx is 2 plus 5x minus 3x square. Here we are having square. Here it is square term. Done. So हमें करना क्या है, सबसे बड़ी टर्म इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, डिग्री के फॉर्म में जो सबसे बड़ी टर्म है उसको इस पॉलिनोमियल के डिग्री के फॉर्म की सबसे बड़ी टर्म के इक्वल कर देना है. ठीक है, और उसका कैंसिलेशन हो जाएगा. नाउ वी आर हैविंग दिस इज द ग्रेटेस्ट टर्म ओवर हियर एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट टर्म ओवर हियर. हमें -3 को -6 बनाना है. -3 को -6 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो मालूम चला कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर. -3 into 2 -6 we will get. So first of all we are going to multiply it with +2. x स्क्वायर है और हमें क्या बनाना है, x क्यूब बनाना है. तो कम से कम एक बार x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2x से हमने मल्टीप्लाई किया, 2x into -3x स्क्वायर, 2 3 are 6 with minus sign, x into x square x cube. 2 प्लस में है और ये 5x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी प्लस में है. तो 2 5 are 10, x into x x स्क्वायर. x स्क्वायर की टर्म के नीचे ही हम प्लस 10x स्क्वायर रखेंगे. उसके बाद दिस इज 2x मल्टीप्लाई विद प्लस 2, 2 2 are 4x, 4x. सी वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूब के नीचे ही क्यूब की टर्म रहेगी, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर की टर्म रहेगी और पावर 1 के नीचे पावर 1 की टर्म रहेगी विद द साइन. हम चेंज नहीं करेंगे. जैसे 2x इंटू -3x स्क्वायर, तो 2 3 are 6 विद माइनस साइन, ये मैंने यहाँ पे लगा रखा है. वी आर गोइंग फॉर द सब्ट्रैक्शन. दिस इज इन पॉजिटिव, इट विल बिकम नेगेटिव. दिस इज पॉजिटिव, विल बिकम नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव, विल बिकम पॉजिटिव. प्लस माइनस का 6x क्यूब इज कैंसिल्ड. व्हाट वी आर लेफ्ट विद 20x प्लस में है, 4x माइनस में है, तो 16x बच गया. x स्क्वायर प्लस में है, माइनस का 10x स्क्वायर है, तो माइनस का 9x स्क्वायर बच गया. उसके अलावा ये 8 प्लस में है, हमने यहाँ पे 8 को बचा रखा है, प्लस में 8 भी हमारे पास बच गया. नाउ द ग्रेटेस्ट टर्म इज -9x स्क्वायर, हियर -3x स्क्वायर. अब -3 को 9 बनाना है. -3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो 9 बन जाए. तो मालूम चला कि 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर. -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 बन जाएगा, यानी +3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद +3. x स्क्वायर की टर्म है, हमारे पास पहले से x स्क्वायर बना हुआ है, x लगाने की जरूरत नहीं है. 3 3 are 9 with minus sign, x square minus x square. 3 5 are 15 plus into plus, तो पॉजिटिव रहेगा. 3 5 are 15 into x, 15x प्लस में. 3 प्लस में और ये 2 भी प्लस में, तो 3 2 are 6 है प्लस में. We will go for the subtraction. पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा. माइनस का 9x स्क्वायर और प्लस का 9x स्क्वायर कैंसिल. बचा क्या अपने पास, 16 minus 15, only 1x is left. 8 minus 6, तो plus 2 is left. So this is our remainder. This is our quotient. हमारे पास gx ये रखा हुआ है. अब हम वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं. fx should be equal to gx into qx, यानी
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर इसे ऐड कर दिया जाए तो हमारे fx के बराबर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। fx को अभी मैंने fx ही रखा हुआ है, अभी इनकी वैल्यू नहीं पुटअप कर रहे। द gx इज 2 + 5x 2 + 5x minus 3x square into the qx is 2x plus 3 plus remainder is here it was 16 see 3 5 is 15 okay 3 2 is 6 here I was having 8 and 6 plus 2 the remainder is x plus 2। हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो fx equals to 2x को पकड़ा और इन पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2x into 2 this is 4x 2x into plus 5x तो plus 10x square 2x into minus 3x square तो minus 6x cube 2x का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ प्लस 3 into plus 2 plus 6 plus 3 into 5x plus 15x plus 3 into minus 3x square minus 9x square और फिर प्लस लगा हुआ है, ये रहा हमारा रिमाइंडर जो बचा था। fx equals to what we are left with here 4x and 15x कुल मिलाकर के 19x 10x square minus 9x square तो प्लस का 1 टाइम x स्क्वायर बचा हुआ है। 6x क्यूब अकेला है तो प्लस का माइनस का 6x क्यूब, उसके बाद प्लस का 6 है, बहुत बढ़िया। देन प्लस लगा हुआ है x plus 2 तो प्लस x plus 2। Now in this step I am going to put the value of our fx। fx की जगह पे it is 8 plus 20x plus x square minus 6x cube equals to 19x plus 1x it is 20x x square बस सिर्फ एक बार x square minus 6x cube minus 6x cube 6 प्लस में 2 प्लस में 6 plus 2 8 so the C and tally plus 8 plus 8 plus 20x plus 20x plus x square plus x square minus 6x cube minus 6x cube therefore we can say that our LHS is equal to our RHS। हमें ये जो वेरिफिकेशन करना था we have done and last word hence verified। So students please be conscious, बहुत सावधान रहिए इस क्वेश्चन को करते समय क्योंकि जरा सी मिस्टेक आपका सारा का सारा किया धरा पानी में डाल देगा। So be prepared for these type of questions। We are having more number of questions based on these two concepts I told today और your homework sheet is attached so kindly go through your homework sheet as well as PDF and do all the questions in your classwork copy। By the time do take very good care of yourself and your family। Have a nice time ahead।